लगाना है। अच्छा, आप शुरू करें। जी सर। थैंक यू। हमारा ऑब्जर्वर है सर असेंबली का। ఈరోజు గౌరవనీయులు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ భూపేష్ సింగ్ బఘెల్ గారు అద్భుతమైనటువంటి సుపరిపాలనతో ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాన్ని గత 5 సంవత్సరాలలో అద్భుతంగా ప్రగతి సాధించి ఈరోజు మళ్ళొకసారి ఛత్తీస్గఢ్లో 2/3 మెజార్టీతో అద్భుతంగా మెజార్టీని సాధించి అధికారంలోకి తీసుకొస్తున్నటువంటి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర రథసారథి వారికి భూపేష్ సింగ్ బఘెల్ గారికి ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో రోడ్ షోకి ఘన స్వాగతం పలికినాం. మేమంతా ఒకటే 6 గ్యారెంటీ ప్రజలకు అందించాలన్నదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశ శ్వాస. ఎట్టి పరిస్థితులలో బీఆర్ఎస్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న ఈ జోగు రామన్న గారు ఈ 15 సంవత్సరాలలో ఆదిలాబాద్ని అన్ని విషయాలలో సత్యనాశనం చేసిండు, అన్ని విషయాలలో వినాశనం చేసిండు. ప్రజలందరిది క్రూరమైన పాలన, రాక్షస పాలన. జోగు రామన్న గారు తన గజకర్ణ గోకర్ణ టక్కు టమార విద్యలు వాడి మసి పూసి మారేడుకాయ చేసి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీల్ని గాలికి వదిలి ప్రజలందరినీ కూడా మభ్యపెట్టి ఈరోజు రాక్షస పాలన చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా చరమగీతం పాడేటువంటి ఆసన్నమైందని ప్రజలకు అర్థమైంది. ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ నాది విజ్ఞప్తి, నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి. అద్భుతమైనటువంటి ఆదిలాబాద్ని అభివృద్ధి చేయాలన్నటువంటి గట్టి పట్టుదలతో నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం. ఆదిలాబాద్కు ఒక అతిపెద్ద పరిశ్రమను తీసుకొచ్చి 10,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించేటువంటి బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. ఆదిలాబాద్ని ఒక పారిశ్రామిక కేంద్రంగా, ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా, ఐటీ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ హబ్గా మార్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. మహామహుమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు వారందరి అండతో ఒక గొప్ప మార్పుని ఆదిలాబాద్కి తీసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. చేతి గుర్తు కోటేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించమని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నా. మీ బిడ్డ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిని మీరే ఆశీర్వదించండి. నేను మిమ్మల్నే నమ్ముకొని రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన, మీరే నా ధైర్యం, మీ ప్రేమ, మీ ఆప్యాయత, మీ అభిమానంతో ఎన్ని వేల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిపిస్తారో మీ దయ, మీ ప్రేమ. మీ బిడ్డ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి, ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం. జై కాంగ్రెస్. ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ की जननेता, लोकप्रिय नेता श्री भूपेश सिंह बघेल जी और एक्स मिनिस्टर फॉर वक्फ एंड हायर एजुकेशन महाराष्ट्र के डॉक्टर अनीस अहमद जी, एमएलसी कर्नाटका से एमएलसी श्री प्रकाश राठौड़ साहब, और हमारा एआईसीसी ऑब्जर्वर अब्बास जी, हमारा सादिक भाई एआईसीसी का सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, और अजमतुल्ला भाई हमारा पीसीसी एंड एआईसीसी कोऑर्डिनेटर, एंड वेंकटेश जी हमारा असेंबली कोऑर्डिनेटर. सबका मैं धन्यवाद करता हूँ. सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. आप सबको नमस्कार. इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित आदरणीय प्रकाश राठौड़ जी, अमानतुल्लाह हुसैन जी, मुन्ना अब्बास जी, वेंकटेश जी, कंडी श्रीनिवास रेड्डी जी, हमारे प्रत्याशी सादिक लखनवी जी, और अनीस अहमद जी, और सभी साथीगण, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों. मैं कल से आपके प्रदेश तेलंगाना में हूं. कल 2 कार्यक्रम हुए. आज के कार्यक्रम आदिलाबाद में था, रोड शो करना था, लेकिन सुबह से बारिश के कारण से होगा नहीं होगा यह हम लोग सोच रहे थे. फिर भी हमने कहा कि हम जाएंगे और कुछ नहीं तो पत्रकार साथियों से बात करेंगे. लेकिन बहुत ही इस बिगड़े हुए मौसम के बावजूद भी यहाँ रोड शो भी हुआ. श्रीनिवास रेड्डी जी ने तत्काल व्यवस्था भी की और बहुत शानदार हजारों के तादाद में यहाँ सब लोग आए. रोड शो में
बहुत ज़बरदस्त उत्साह लोगों में, जितने भी वहाँ जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक हैं, जितने भी मिले रास्ते में, निश्चित रूप से देखने के बाद ये लगता है कि श्रीनिवास जी के पक्ष में यहाँ ज़बरदस्त माहौल है। आदरणीय साथियों, आज प्रत्येक व्यक्ति महंगाई से जूझ रहा है। केंद्र सरकार लगातार, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, चाहे रासायनिक खाद हो, चाहे यात्री ट्रेन हो, सबके कीमतें में इतना वृद्धि कर दिया है कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। ऐसे समय में लोग उम्मीद कर रहे थे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से कि हमको कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन वो मिलना तो दूर, जो वादा उन्होंने किया था उसे उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। चाहे ST/SC को 3 एकड़ जमीन देने की बात हो, चाहे वो पुड्डू खेती जो करते हैं उनको जमीन देने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे किसानों को ऋण माफी करने की बात हो, ये सारी बातें उन्होंने कही थी और उन्होंने सब बातों पे यू टर्न लिया। और उम्मीद तो लोग कर रहे थे किसानों का भला होगा, मजदूरों का भला होगा, बेरोजगारों का भला होगा, महिलाओं का भला होगा, और इस कारण से उनको 10 साल का मौका दिया। लेकिन उन्होंने अपने घर भरने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। उनके परिवार वाले खूब संपन्न हुए, 17 विभाग उनके परिवार में, परिवार के सदस्यों के पास है, और यहाँ लगातार जमीन, लगातार उनके लोग, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, चाहे खुद उनके परिवार के लोग हों, सब लोगों ने जमीन खूब इकट्ठा की। चाहे जमीन की बात हो, चाहे रेत की बात हो, चाहे शराब की बात हो, सब में उन्होंने खूब वसूली किया है। लेकिन मजाल है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। दोनों के एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस को रोकना, और कांग्रेस को रोकने के लिए लगातार, चाहे BRS की बात हो, चाहे BJP की बात हो, दोनों एक दूसरे के मदद कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि वोट का विभाजन हो और फिर से BRS सत्ता में आए। लेकिन तेलंगाना की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, और एक बार धोखा खाए, दूसरे बार भी उनको मौका दिया, लेकिन बार बार धोखा वो नहीं खाएंगे। और इसलिए इस समय कांग्रेस पार्टी ने जो 6 गारंटी लेके आई है, वो महालक्ष्मी योजना, जिसमें आपको महिलाओं को 2500 रुपया महीना मिलेगा, 500 रुपया गैस सिलेंडर, और RTC बसों में मुफ्त की यात्रा। ये सब इसलिए कि महिलाएं स्वावलंबी हो, साथ ही जो महंगाई तो झेल रहे हैं उसमें कुछ सहायता मिले। दूसरा, किसानों का जो भरोसा है, जिसमें 15,000 रुपया प्रति एकड़ देने की बात कही गई है, जो कृषि मजदूरों के लिए हर साल 12,000 रुपया देने की बात है, और किसानों को 2 लाख तक के कर्ज माफ। गृह ज्योति योजना के तहत तीसरी जो गारंटी है, उसमें 200 यूनिट तक के बिजली बिल माफ होगा, और इंदिरम्मा योजना के तहत, जिसमें 5 लाख तक के घर बनाने के लिए, और 250 वर्ग फीट जगह चाहिए, 250 वर्ग मीटर होगा ना, गज होगा, गज होगा, यार्ड्स। हमारे यहाँ फीट चलता है, इस तरह से जबान से वही निकला। युवा विकास के लिए भी इसमें योजना है, और 6वां गारंटी है, जिसमें 4,000 पेंशन और 10 लाख राज्य आरोग्य श्री बीमा। तो इस प्रकार से 6 गारंटी, ये इसलिए कि आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं। दूसरी तरफ BRS की सरकार है, वो केवल लूटने खसोटने में लगी है, आम जनता के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, आपके पड़ोसी राज्य से हूँ, अनीस भाई भी पड़ोसी हैं, महाराष्ट्र यहाँ से 200 किलोमीटर में आपके
नागपुर जहाँ के निवासी हैं, और यहाँ से चंद्रपुर लगा हुआ है और चंद्रपुर से हमारा छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। तो बिल्कुल हम लोग पड़ोसी राज्य के हैं, चाहे वो सुकमा जिला हो, चाहे बीजापुर जिला जो आपसे सटा हुआ एरिया है, नारायणपुर जो अबूझमाड़ का इलाका कहलाता है, वहाँ हम लोगों ने जो आदिवासियों को जो जमीन हम लोगों ने दिया, चाहे वो व्यक्तिगत दावे के हो, चाहे सामुदायिक दावे के हो, चाहे वन संसाधन अधिकार का, लगभग हमारे यहाँ 31% आदिवासी हैं और लगभग हम लोगों ने 1 करोड़ एकड़ जमीन उनको दी है, चाहे वन संसाधन के रूप में हो, चाहे सामुदायिक दावा के रूप में हो, चाहे व्यक्तिगत दावे के हो। सबसे ज्यादा देश भर में सबसे ज्यादा अधिक उनको दिया गया है जमीन। दूसरी बात, किसानों के ऋण माफी का वादा राहुल जी ने किया था 2018 में, और 2018 में जब उन्होंने वादा किया था, उन्होंने मुझे 10 दिन का समय दिया था, शपथ लेने के 10 दिन बाद किसानों का ऋण माफ करना है। तो वहाँ हम लोगों ने करीब 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपया हम लोगों ने माफ किया 2 घंटे के भीतर में। उन्होंने 10 दिन का समय दिया, मैं तो 10 घंटे भी नहीं लिया, 2 घंटे के भीतर में अभी हम लोगों ने किया है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा था राहुल जी ने कि 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी होगी, और केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप बोनस नहीं दे सकते, तो उसमें हम फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की। और इस साल यदि किसान न्याय योजना और समर्थन मूल्य दोनों मिला के देखें, राहुल जी ने 2500 कहा था, लेकिन अभी जो पिछले साल जो धान बेचे किसान, वो 2640 और 2660 रुपया उनको मिला, मतलब वादा से ज्यादा हमने दिया है। उसी प्रकार से 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा सबका, अभी तो हम लोगों ने भी 200 यूनिट किया है। 200 यूनिट जो बिजली बिल जो होगा, तो मैं समझता हूँ कि तेलंगाना के 75-80% लोगों के घर में, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, उसके घर में बिजली बिल ही नहीं जाएगा, पटाने का सवाल ही नहीं उठता। ये बड़ी बात है। हमारे यहाँ भी 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा हम लोग किया, और लगभग 4,300 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में उनको दिया। 35 किलो चावल हम लोगों ने देने का वादा किया था, चाहे APL हो, BPL हो, सबको 35 किलो चावल है, नमक है। आदिवासी क्षेत्रों में तो हम लोगों ने गुड़ और चना भी दिया है, तो ये उपलब्ध कराया, उसमें हजारों करोड़ की सहायता हम लोगों ने दी। तो अभी तक के जितने भी हम लोगों ने राशि, चाहे लघु उपज खरीदी की बात है, हमारे यहाँ जो बीड़ी पीते हैं ना, तो बीड़ी तेंदुपत्ता हमारे यहाँ होता है, तो 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से, और जितने लघु उपज है उसके समर्थन मूल्य खरीदी की, उसको वैल्यू एडिशन करने का, ये सब हम लोगों ने किया। तो करीब इन 5 वर्षों में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा जो हितग्राही हैं उनके खाते में गया है। तो हम लोगों ने जो जो वादा, हमारे कांग्रेस के नेता उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी थे, उन्होंने जो वादा किया था हम लोगों ने पूरा किया है। आज उसी प्रकार से हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट है, अभी ज्यादा दिन बना नहीं है, लेकिन 5 गारंटी उन्होंने कही थी, और 5 गारंटी उन्होंने पहले कैबिनेट में उन्होंने पारित कर दिया। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो मोदी जी हो, चाहे KCR हो, इनकी गारंटी का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा विदेश से काला धन लाऊंगा, वो तो लाया ही नहीं। देश के अंदर काला धन लाने की बात कही थी, सब नोटबंदी लागू किया, आज तक कितना नोट जमा हुआ, कितना काला धन हुआ, ये बताया नहीं। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात, वो तो हुआ नहीं। किसानों का आय दोगुनी करने की बात उन्होंने की थी, वो तो हुआ नहीं, बल्कि खर्च है वो दुगुना हो गया। तो जो मोदी जी की गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं है, उसी प्रकार से कि BRS की जो गारंटी है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आज सारे समाचार पत्रों में, मीडिया में विज्ञापन भी छपा है कि उन्होंने 2 BHK दूंगा बोले तो दिया नहीं, 3 एकड़ जमीन बोले तो किसी को मिला नहीं। उनके परिवार वालों को जरूर मिला, उनके परिवार वालों के पास जमीन इफरात है, लेकिन गरीब को देने के लिए ना उसके पास पैसा है, ना ही जमीन है। तो जितने वादे उन्होंने किए थे, जो गारंटी लोगों को दिया था, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन
मैं आपके सामने कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में 5 साल कोरोना के बावजूद भी जो वादे, जो गारंटी हमारे कांग्रेस पार्टी ने दी थी, हमारे नेताओं ने दी थी, उस गारंटी पे लोगों को भरोसा है, छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ 7 और 17 तारीख को मतदान हो चुके हैं। पिछले समय 3/4 बहुमत से जीते थे, इस समय वो आंकड़ा और अधिक बढ़ेगा, 3/4 बहुमत से फिर से हम जीतेंगे। तो लोगों को भरोसा कांग्रेस पर है। और मैं समझता हूं कि जो 6 गारंटी है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, जिस प्रकार से कर्नाटक में लागू हुआ, उसी प्रकार से आपके तेलंगाना में भी लागू होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। तेलंगाना के अंदर जो बात बताई जा रही है कि आप 6 गारंटी लेकर आए, लेकिन यहाँ पर खजाना खाली है, इतने बड़े बड़े आपने वादे किए और साथ में जो आरटीसी का है उसको गवर्नमेंट में ले लिया गया, फिर अब उसके ऊपर ऑलरेडी तनख्वाहों का बोझ बढ़ गया, फिर महिलाओं को फ्री, ये कैसे पॉसिबल? देखिए, ये जो अर्थव्यवस्था, यही सवाल अब 5 साल पहले हम लोगों से पूछा गया छत्तीसगढ़ में, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी थे, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, वो बोले खजाना खाली है और आप ये नहीं कर सकते, 2500 रुपया नहीं दे सकते, ऋण माफी आप नहीं कर सकते, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता नहीं दे सकते, राशन सबको नहीं दे सकते। जो सवाल आपने किया यही 5 साल पहले मुझसे भी छत्तीसगढ़ में किया गया था। लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था उसको समझ लीजिए और राज्य की अर्थव्यवस्था को समझिए। यदि आप खजाने के पैसे को मजदूरों को, गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को आप यदि पैसा देते हैं, बेरोजगारों को पैसा देते हैं, तो वो पैसा घूम के मार्केट में आता है, तो मार्केट में भी रौनक, और वही फिर पैसा चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे आप जीएसटी के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, फिर से आपके खजाने में आता है। मैं आपको कह रहा हूं कि आज 5 साल चलाने के बाद भी 2.25 लाख करोड़ रुपया आम जनता के खाते में सीधा डालने के बावजूद भी देश के कुछ गिने चुने जो राज्य हैं जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है, उसमें एक छत्तीसगढ़ भी है। तो आप एक अर्थव्यवस्था है कि जो आम जनता को पैसा दे, ये कांग्रेस की अर्थव्यवस्था है। तो आम जनता है वो ताकतवर हो, और वो एक अर्थव्यवस्था उसके माध्यम से संचालित हो रही है, जो आम जनता को पैसा दो, वो उसके बाद फिर गांव की भी दुकान भी चलेगा, कस्बे के भी चलेगा, ब्लॉक और जिले के भी चलेगा, प्रदेश के भी व्यापार व्यवसाय चलेगा। दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था है जो बीआरएस और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आम जनता से पैसा लो और जो खजाने का पैसा है वो चंद उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दो, तो वो पैसा या तो विदेश में जाएगा या बड़े बड़े वो कंपनी खोल देंगे, लेकिन आम जनता को उससे लाभ होना नहीं है। 2-4 हजार लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन यदि यही पैसा यदि मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगार साथियों को पैसा दोगे तो सब कुछ बढ़िया संचालित होगा, आपकी अर्थव्यवस्था भी बढ़िया होगा। 5 साल चलाने के बाद आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हम ओवरड्यू नहीं हुए कभी, एक बार भी, जबकि कोरोना काल में भी किसानों को पैसा देता रहा, हम ओवरड्यू कभी नहीं हुए। मध्य प्रदेश तो अभी चुनाव होने के बाद वो लोन लिया, मार्केट से लोन लिया है, हमारे पड़ोसी राज्य है, आपका भी पड़ोसी है निज भाई, अभी लिया है 2-3 दिन पहले, मतदान होने के बाद भी वो बैंक से लोन लिया है। हमारी छत्तीसगढ़ में वो स्थिति कंफर्म नहीं है। तो ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो प्रदेश की जनता को यही चुनना है कि जो आपको ताकतवर बने, राज्य के भी जो अर्थव्यवस्था वो मजबूत हो, ये रास्ता कांग्रेस का है। दूसरा रास्ता ये है जो राज्य भी कमजोर हो, कर्ज में डूब जाए और आम जनता महंगाई से त्रस्त हो और जीना दुभर हो जाए, मुहाल हो जाए, ऐसी अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस की है। सर, केसीआर साहब बोल रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की 20 सीटों की जमानत नहीं है, पर उनके चीफ मिनिस्टर के 12 कैंडिडेट हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चीफ मिनिस्टर के 12 कैंडिडेट, मैं पहले ये पूछता हूँ किसी यार से 2 जगह चुनाव लड़ने की उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इतना डरे हुए हैं? मतलब तेलंगाना की जनता से उनको इतना डर है, अपने निर्वाचन क्षेत्र से इतना डर है कि अब नहीं चुनेंगे तो दूसरी जगह चले गए। तो ऐसे डरे हुए लोग इस
इस प्रदेश का आप लोग राष्ट्र बोलते हैं, शायद तेलंगाना राष्ट्र बोलते हैं, हमारे यहाँ महाराष्ट्र और महा भी राष्ट्र है और तेलंगाना भी राष्ट्र है, हम लोग राज्य वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो खुद डरा हुआ है अपने मतदाता से, उसके बारे में क्या बोलना। और जहां तक बहुमत आएगी हमारे विधायक दल तय कर लेंगे, हाईकमान तय कर लेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा, है ना। 3 तारीख रिजल्ट आएगा, 9